નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિદાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને આપણા સૌના લાડીલા એવા વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આવતા ગુરુવારે હોળી છે અને હોળીનો ઉત્સવ આપણે સાંજના સમયે 6:30 થી 7 વાગ્યાના ગાળામાં ઉજવીશું. તો એની સૌ ભક્તો ખાસ નોંધ લઈ. આવતા ગુરુવારે હોળીના દિવસે સમય સાંજનો છે. તમામ ભક્તો આવી શકે છે, સૌને છૂટ છે. દિવસનો પ્રોગ્રામ નથી, સાંજનો પ્રોગ્રામ છે, તો એ વાતની સૌ કોઈ ધ્યાન લે. પરમ પૂજ્ય છોટેદાદાશ્રીનો જન્મદિવસ નજીક આવી રહ્યો છે. જન્મદિન નિમિત્તે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થમાં શુભેચ્છા આપવા માગતા ભક્તો જલ્દીથી પોતાના ફોટા મોકલાવી દે અને પોતાની શુભેચ્છા સંદેશ પેપરમાં છપાવે. પૂજ્યશ્રીના જન્મદિન નિમિત્તે 26 અને 27 માર્ચે દાદા કી સૈના પ્રીમિયર લીગ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો આ ટુર્નામેન્ટમાં IPL સ્ટાઇલમાં આપ સ્પોન્સર કરી શકો છો. તો જે કોઈ પણ ભક્તો પોતાની ટીમ લેવા માગતા હોય તે પોતાનો સહયોગ અવશ્ય નોંધાવે. આજનો ભંડારો રમેશભાઈ ગવાભાઈ પાડવી સુરત અઠવા લાઈમ તરફથી છે. તો એમને નમ્ર વિનંતી છે કે પૂજ્યશ્રીના સ્વાગત માટે સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત થાય. રમેશભાઈ સ્ટેજ પર આવજો. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈએ. તાળીઓના ગડગડાટ ચાલુ રહ્યો છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વિશેષના આજના ભંડારામાં મોતીચૂરના લાડુ પણ રાખવામાં આવ્યા છે. એ સમયક દેવ સાહુના જન્મદિન નિમિત્તે રાખવામાં આવ્યા છે. સમયક એ 16 વર્ષમાં પ્રથમવાર પોતાનો જન્મદિવસ નવનાથ ધામના ભંડારામાં સહયોગ કાર્ય કરીને ઉજવ્યો છે. તો ખૂબ જ સુંદર વાત કહે, એના માટે એકવાર તાળીઓનો ગડગડાટ થઈ જાય. સમયક એ શુભારંભ સાહુના સુપુત્ર છે, જેઓ છત્તીસગઢ સત્સંગ મંડળમાં ખૂબ જ એક્ટિવ છે અને પૂજ્યશ્રીના દરેક કાર્યોમાં હંમેશા જોડેલા રહે છે. તો પૂજ્યશ્રીની એ જ પ્રાર્થના કે ગુરુદેવની કૃપા એમના પર સદા વરસતી રહે. નવનાથ ધામના અન્ય ક્ષેત્રે યોગદાન આવ્યું છે. વિનોદભાઈ એન ગામિત બંધારપાડા 20 કિલો ચોખા, કાનાભાઈ ગામિત બંધારપાડા 10 કિલો ચોખા, કુમુદબેન ગામિત ગાળકુવા 60 કિલો ચોખા, હંસાબેન ગામિત ગાળકુવા 20 કિલો ચોખા, છગનભાઈ ગામિત ગાળકુવા 20 કિલો ચોખા, અનિલભાઈ ગામિત ગાળકુવા 10 કિલો ચોખા, હરિલાલ ગામિત 10 કિલો ચોખા 15 કિલો ઘઉં, ઉમાવતીબેન ગામિત મૈયાલી 30 કિલો ચોખા 10 કિલો ઘઉં, મનુભાઈ ગામિત મૈયાલી 20 કિલો ચોખા, લાલજી ગામિત બોરકુવા 10 કિલો ચોખા, નીતાબેન ગામિત સરૈયા 20 કિલો ચોખા, કમનાભાઈ ગામિત મૈયાલી 10 કિલો ચોખા, મણિબેન ગામિત મદાવ 2 કિલો કાળા મગ 3 કિલો ચોખા, રેખાબેન ગામિત મદાવ 20 કિલો ચોખા. તો સૌ દાતાશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચારગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત.
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री सानेनाथ गुरु मच्छेंद्रनाथ की जय। आनंदी लाल की जय। छोटे दादा की जय। हम सबके हृदय में परब्रह्म स्वरूप में उपस्थित, नारायण स्वरूप में उपस्थित ऐसे हमारे सद्गुरु श्री सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेंद्र समर्थ और आदेश। परमात्मा परम कृपालु है, परमात्मा परम दयालु है और परमात्मा ही हम सबके लिए पिता समान है। इसलिए कहा गया है कि जीव अंशी है और ईश्वर अविनाशी है। जीव ईश्वर के अविनाशी रूप से ही अलग हुआ एक अंश मात्र है और इसीलिए यह जीव की गति सद्गति के रूप में, परम गति के रूप में और मोक्ष गति के रूप में ईश्वर के चरणों तक मानी गई है। जब भी ये जीव जन्मता है और जब जीव अपना शरीर छोड़ देता है, तब हम हमेशा कहते हैं कि चलो जो भी हुआ, यह जीव को सद्गति प्राप्त हुई। जीव अनंत की यात्रा के ऊपर प्रयाण कर गया, जीव परम शांति में निवास कर गया। ऐसे सभी वाक्य जब जीव शरीर छोड़ देता है तब उसके पीछे बोले जाते हैं। हम सब राम का नाम लेके भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति गया है, कहाँ गया है? राम नाम सत्य है, राम के शरण में गया है। कहाँ चला गया है? तो वैकुंठ चला गया है। तो ये जितने भी वाक्य है, व्यक्ति के मरने के बाद हमेशा समझते हुए भी और ना समझते हुए भी हम बोलते रहते हैं। ये जो कुछ भी हम बोलते हैं, यह सभी वाक्य या सभी आश्वासन हमारी प्रणालिका में, हमारी परंपरा में हमें प्राप्त हुए हैं। और ये सभी वाक्यों का अर्थ तो एक ही होता है कि जो अविनाशी है, ईश्वर जो अविनाशी है, वही अविनाशी की और जीव जो अंशी है
उसने महाप्रयाण किया है। तो यहां से ही हमें समझना है कि हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, हमें कभी ना कभी भी उसकी प्राप्ति के लिए प्रयाण करना पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी ना किसी मार्ग से भी प्रयाण करना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि हाँ, हमें परमात्मा की प्राप्ति तो करनी है, लेकिन आज नहीं, अमुक वर्षों के बाद करेंगे, जब समय आया तब करेंगे, जब मेरे मन को लगा तब मैं करूंगा। यानी हमें ये एहसास तो हो चुका है कि हमें उसकी प्राप्ति करनी है, लेकिन कब करनी है? जब समय आए तब, या फिर जब इच्छा हो तब, या फिर जब मुझे अनुकूल लगे तब। यानी करनी तो है, लेकिन आज नहीं करनी है। करनी है, कभी भी करनी है। तो यहां हमने सोच लिया है कि हम आज नहीं तो कल, कभी भी हमारे हिसाब से परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग हम ढूंढ लेंगे। लेकिन जो जीवन संसार सागर के रूप में हमें मिला है, तो वही संसार सागर रूपी जीवन को हमने अगर देखा है, तो ये भी समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार सागर निरंतर बहते रहता है, उसी प्रकार हमारा संसार भी निरंतर बहते रहता है। यह संसार गतिशील है, यह संसार चलित है, यह संसार अस्थाई है, यह संसार चलते ही रहता है। और जो संसार समय के रूप में बह रहा है, और वही समय के रूप में बहने वाले संसार में हम सोचेंगे कि हम कभी ना कभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग ढूंढ ही लेंगे, तो मुझे बताइए कि ये कैसे संभव होगा? कभी ऐसे हो सकता है कि जो गाड़ी चल रही है उसमें उसी गाड़ी की गति से दौड़ते हुए हम उस गाड़ी को पकड़ लें। जो गाड़ी चल ही रही है, तो जो गाड़ी चलने वाली है उसकी गति हम कहां से ला पाएंगे? चलती हुई गाड़ी को रोक के हम कैसे बैठ पाएंगे? लेकिन फिर भी हमने हमारी अज्ञानता से ये सोच लिया है कि यह जो जीवन है उसमें कभी ना कभी प्रभु की प्राप्ति करनी है, आज नहीं तो कल, समय आए हम कर लेंगे। तो इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि संसार चलित है, गतिशील है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। अगर हम सोचते रहेंगे कब ना कब करेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। और इसीलिए कहा गया है कि अगर संसार में यह अंशी जीव को अविनाशी की अगर प्राप्ति करनी है, तो 3 मार्गों से हो सकती है। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग कर्म मार्ग, और तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। ये 3 मार्ग ऐसे हैं जो यही गतिशील संसार में हमें प्राप्त होते हैं। यही गतिशील संसार में अगर किसी भी एक मार्ग में हमने प्रयाण करना शुरू कर दिया,
तो अंत में परमात्मा की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति हमें किसी भी एक मार्ग के ऊपर से हो सकती है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने हमें 3 मार्ग बता दिए। या तो भक्ति के मार्ग से जाओ, या ज्ञान मार्ग से जाओ, या फिर आप कर्म मार्ग से जाओ। किसी भी एक मार्ग के ऊपर से जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कब? कि जब उस मार्ग के ऊपर आपको आध्यात्म देने वाला सद्गुरु प्राप्त हो तब। इसलिए आप देख सकते हैं कि महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म मार्ग दिया। संपूर्ण भागवत गीता कर्म मार्ग के ऊपर बोली गई है कि अर्जुन उठ, कर्म कर। और कर्म मार्ग को समझाते हुए वही कर्म मार्ग में संन्यास, कर्म संन्यास योग की बातें की गई है, ज्ञान मार्ग की बातें की गई है, भक्ति मार्ग की बातें की गई है। लेकिन गीता के 18 अध्याय में से ज़्यादा अध्याय कर्म मार्ग और कर्म संन्यास योग के ऊपर दिए गए। यानी भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू कर्म कर और कर्म संन्यासी बनते हुए मेरी प्राप्ति कर। इसलिए अंत में जब 5 पांडव हिमालय की ओर प्रयाण कर जाते हैं तो 5 पांडवों को, विशेष अर्जुन को संन्यास लेने की सूचना वहां मिलती है। उसी प्रकार से आप देखें तो भक्ति मार्ग विदुर जी को दिया गया है, भक्ति मार्ग कुंती को दिया गया है। और इसीलिए भगवान विदुर की भक्ति से प्रभावित होते हुए दुर्योधन के घर 56 भोग खाने जाने की वजह विदुर के घर गए और वहां जाके विदुर ने जो भाजी खिलाई उसी को ही भगवान ने 56 भोग समझ के खा लिया। भगवान ने विदुर जी को भक्ति मार्ग दिया, इसलिए विदुर जी युद्ध में नहीं गए। विदुर जी अपने यहाँ अपने भवन में ही रहे, ऋषियों के साथ सत्संग करते रहे, धर्माचरण करते रहे और भक्ति मार्गी रहे। उसी प्रकार उसी महाभारत काल में भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान मार्ग दिया और उद्धव ने ज्ञान मार्ग प्राप्त करते हुए संपूर्ण जीवन पर कृष्ण अत्र तत्र सर्वत्र है, यही ज्ञान अपने अंदर उतारते हुए अपने जीवन पर ज्ञान मार्ग का आचरण किया। यानी जो जैसा भक्त था, जैसी जिसकी रुचि थी और जैसे जीवन के उसके कर्तव्य थे, अलग अलग भक्तों को अलग अलग मार्ग दिए गए। लेकिन यह अलग अलग मार्ग देने का तात्पर्य भी एक ही था कि अंत में किसी भी एक मार्ग के द्वारा मेरी ओर प्रयाण हो जाए, मेरे में आके ये समा जाए। और जहाँ तक आज कलयुग का सवाल है, वहाँ कलयुग में मेरी दृष्टि से परमात्मा ने चौथा मार्ग दिया है और वो चौथा मार्ग होता है सत्संग। भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी जहाँ एक जगह आके एकरूप हो जाए और जिसके शरण में आके एकरूप हो जाए, ऐसा धाम सत्संग का धाम होता है। और सत्संग धाम में जो शरण, जिसका सानिध्य होता है, वो सानिध्य होता है आध्यात्म यानी सद्गुरु का। इसीलिए
हम सब हर गुरुवार को यहाँ आते हैं तो केवल भक्ति मार्ग की बातें ही नहीं होती, कभी कर्म मार्ग भी किया जाता है, कभी ज्ञान मार्ग की भी बातें होती है, और कभी कभी कई बार भजन कीर्तन के रूप में भक्ति मार्ग भी होता है। सदगुरु के चरणों में ये तीनों जहाँ एक हो जाए वहाँ आध्यात्म जन्म लेता है, और यही आध्यात्म मानवता लक्षी है। केवल भक्ति करने वाला ही मानवतावादी हो सकता है ऐसा नहीं, केवल कर्म करने वाला ही मानवतावादी हो ऐसा नहीं, ज्ञानवादी ही मानवतावादी हो ऐसा नहीं। मानवतावादी जो पथ है ये अध्यात्म है, जहाँ तीनों को मिला के मानव उत्थान के कार्य होते हैं, जहाँ ये तीनों त्रिवेणी जहाँ मिल जाती है वहाँ विराट पुरुष का निर्माण वहाँ होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के पास गए। क्यों गए? मानव तो थे, महामानव बनने के लिए गए। भगवान राम वशिष्ठ जी के पास गए। क्यों गए? मानव तो थे, महामानव बनने के लिए गए। भगवान परशुराम अपने गुरु के पास गए, भगवान दत्तात्रेय के पास। क्यों गए? मानव तो थे, महामानव बनने के लिए। यानी महामानव बनने की जो प्रयोगशाला है वह प्रयोगशाला काशी क्षेत्रम तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम, कि ऐसा धाम, ऐसा शरण केवल और केवल गुरु का होता है, जहाँ सभी मार्ग आके एकरूप हो जाते हैं। और इसलिए आज की विचार गंगा में मैंने हमारे गुरु जी की भजन की पंक्तियों को साथ में लिया है कि भक्ति नाव में बैठकर आया, गुरु दरबार में दर्शन पाया, गुरु जी की ललकार मेरा हुआ बेड़ा पार, आया तेरे दरबार में। ये भजन हमारे सदगुरु ने बनाया था, और ये जो भी भजन उन्होंने बनाए थे यही भजन उनकी आराधना थी। और यहाँ ये स्पष्ट समझाते हैं कि मैं भक्ति नाव में बैठकर आया हूँ संसार सागर पार करने के लिए। जो यहाँ आता है संसार सागर को पार करने के लिए आता है, लेकिन संसार सागर पार कैसे होता है? नाव में बैठे हो। अगर हम नाव में बैठ गए और संसार सागर पार हो गया तो उस पार परमात्मा है, ये नाव परमात्मा तक पहुंचा देगी। यानी भक्ति मार्ग रूपी नाव एक साधन का काम करेगी। हम सब साधक बनते हुए उस नाव में बैठेंगे, और अंत में परमात्मा का जो हम प्राप्त करेंगे, वहां जिसे हमने साधन बनाया है वही साधन परमात्मा के रूप में हमें साध्य हो जाएगा। साधक, साधन, और जिसे हम पाना चाहते हैं वो है साध्य। परमात्मा के रूप में यही भक्ति रूपी साधन हमें साध्य हो जाएगा। लेकिन साध्य करवाने वाला कौन होता है? जिसने ये लिखा, ये गुरु होते हैं। और इसीलिए गुरु को साधु कहा गया। साधु यानी जो हमें उसको साध्य करवा दे, जो हमें उसको साध्य करने की साधना दे, जो हमें साधना के साथ साथ वहाँ तक जाने के लिए सुरक्षित साधन दे, वो होता है साधु। और हम सब संसार सागर में उतरे हैं, लेकिन हम सब के लिए भक्ति मार्ग का आयोजन किया गया है। हाँ, यहाँ भक्ति मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है। ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी काम होते हैं ये कर्म मार्ग है। भंडारे के रूप में, किसी वितरण के रूप में, मेडिकल कैंप के रूप में, ये जो भी कुछ होता है
भक्ति के साथ साथ कर्म भी है, और जो भी कर्म होता है ज्ञान पूर्वक कर्म होता है, ज्ञान के साथ हो रहा है। हमें ज्ञान हो रहा है, इसलिए हम किसी की वेदना समझते हुए उसे कुछ दे रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को वस्तुओं के रूप में हम पूरा कर रहे हैं। तो हम सबको जो मार्ग मिला है, यह मार्ग मिला है भक्ति मार्ग, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है, 3 मार्ग में से एक भक्ति मार्ग। हमारे गुरुदेव ने हमें यह कलयुग में सहज और सुगम मार्ग दे दिया है कि अगर आपको कर्म करना है, दान करना है, सेवा भी करनी है, तो आपको धन भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए। कई भक्त ऐसे हैं जिनके पास कोई एक होता है तो कोई 2 नहीं होते। अगर आपको परमात्मा को समझना है तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान से हम कैसे पा सके, तो उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए। लेकिन हमारे सांसारिक जीवन में उसे समझने की बुद्धि बहुत कम लोगों में है। तो कैसे हम उसको पा सके, इसलिए कहा गया कि भक्ति मार्ग एक सुलभ मार्ग है। जो भक्ति करता है उसे धन की आवश्यकता नहीं, मन से करता है। जो भक्ति करता है उसे स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं, वो स्वस्थता से करता है। जो भक्ति करता है उसे बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अगर बुद्धि से भक्ति करे तो वह भक्ति स्वार्थमय हो जाएगी। इसलिए भक्ति करने वाले को बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, भक्ति करने वाले को बोध की आवश्यकता है। तो जहाँ बुद्धि की आवश्यकता न हो, जहाँ स्वास्थ्य की आवश्यकता न हो, जहाँ धन की आवश्यकता न हो, जहाँ सब सुलभ हो जाए, ये कुछ न हो, फिर भी वहाँ तक पहुँचा जाए, ऐसा अगर मार्ग है तो भक्ति मार्ग है। क्योंकि परमात्मा ने जो ये हमें जीवन दिया है, ये जीवन से हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं उसे भक्ति ही कहा जाता है। भक्ति का एक अर्थ होता है पुरुषार्थ। आप भले बैठे बैठे भक्ति करो, लेकिन जब आप माला जपते हो तो माला जपने का एक पुरुषार्थ होता है। आप बैठे बैठे ध्यान करते हो, तो ध्यान भी अगर करते हो तो मन से भी जिसके लिए आप ध्यान करते हो, जिसका ध्यान करते हो, वो सोचना, ये भी एक पुरुषार्थ होता है। आप सेवा करते हो तो सेवा भी एक पुरुषार्थ है। भक्ति का एक ही अर्थ है, भक्ति का अर्थ होता है कि हम अपने भीतर से परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ करें। वो भजन से करिए, भोजन से करिए, या फिर कर्म से करिए, ग्रंथ पढ़ते हुए करिए, या ज्ञान मार्ग से करिए। लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान भी अधूरा है, और भक्ति के बिना कर्म भी अधूरा है। कोई आए आपके दरवाजे पे और आपको कहे कि मुझे पानी चाहिए, आप पानी लाके उसे दे देंगे तो एक कर्म हो जाएगा। लेकिन जब आप पानी देंगे और ऐसा भाव रखेंगे मन में कि चलो आज हमारे द्वार पे कोई आया है, मैं जीवन में कुछ करूं या ना करूं, किसी के लिए उसे पानी पिलाने तक का तो मैं उपयोगी हो सकता हूं, और ऐसा सोचते हुए भाव से उसे पानी पिलाएंगे तो उसमें भक्ति बनेगी, और वही भक्ति कर्म होगी, और वही कर्म सदकर्म बन जाएगा। तो यहां आप समझिए कि भाव जहां पैदा होता है वहां भक्ति होती है। मैं किसी के लिए उपयोगी बन जाऊं, ये समझ जहां आ जाए, वहां समझ लीजिए कि ज्ञान वहां आ जाता है। यानी ज्ञान और भक्ति दोनों मिल गए, और जो कर्म हुआ तो सत्कर्म हो गया। यहां भंडारे में आप जो कुछ भोजन करवाओ, वो किस भाव से करवाते हो? नहीं, लोग आते हैं खा जाएंगे, खा जाएंगे तो समझ लीजिए कर्म हो गया। यहां जो भी आते हैं भक्त आते हैं। मैं मेरा भोजन जो भंडारा करवाता हूं, ये गुरु दरबार में दिया गया मेरी ओर से एक योगदान है, महाप्रसाद है। और आने वाले भक्त हो या कोई भी हो,
मैं परमात्मा के लिए ये कर्म कर रहा हूँ, ये ज्ञान है। और जो भी भक्त है ये सब मेरे गुरु बंधु है, ऐसा समझते हुए भाव से जब आप करो तो यही भक्ति, यही ज्ञान और ये कर्म अध्यात्म रूप से सत्कर्म बनेगा। तो हम सब जो बैठे हैं ये भक्ति मार्ग में बैठे हैं, भक्ति नाव में बैठे हैं। हमें जो ये शरीर मिला है ये साधन के रूप में मिला है। तो भक्ति हमें कैसे करनी है? तो भक्ति हमारे शरीर के साथ, हमारे मन के साथ हमें जुड़ते हुए करनी है। एक बार एक किसान था, उस किसान के पास जितने भी रुपये थे वो पूरे हो गए। वो किसान एक साहूकार के पास गया और साहूकार को कहा कि मेरे पास जो पैसे हैं वो पूरे हो चुके हैं, मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक छोटा सा खेत दीजिए। साहूकार ने कहा उस खेत का तू करेगा क्या? मुझे छोटा सा एक खेत दीजिए, ये खेत में मैं फसल उगाऊंगा और फसल उगाने के बाद जो भी फसल आएगी उसमें से आधी से ज़्यादा मैं आपको दे दूंगा, बाकी जो है वो मैं बेचूंगा और धन कमा लूंगा। मेरा जीवन जीने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं, तो आप मुझे छोटा सा खेत दीजिए जिसमें मैं फसल करूं और आपको कुछ दूं, कुछ मेरे लिए रखूं। यानी उसका विचार परमार्थी विचार था। सब मैं रख लूं तो वो स्वार्थ हो जाता है। आधे से ऊपर आप रखिए, बाकी जो है मैं रख के बेचूंगा, जो आए वो मैं धन कमाऊंगा और आपको मैं अनाज दे दूंगा। वो मालिक ने सोचा कि आदमी तो अच्छा लग रहा है, विचार भी अच्छे हैं, तो खेत दे के मैं उस पर दया करता हूं और थोड़ी दया ज्यादा कर लेता हूं। मालिक ने कहा, साहूकार ने कहा कि खेत तो मैं तुझे दे रहा हूं, जमीन भी ज्यादा है, तू अकेला कैसे इसमें काम करेगा? एक काम कर, खेत के साथ साथ मैं तुझे मैं और 5 व्यक्ति तुझे देता हूं, ये मजदूर लोग देता हूं 5, उसको तू अपने साथ ले जा और उसके साथ मिलके काम कर। जो कुछ तुझे मिलेगा उसमें थोड़ा उसे भी दे देना, तो तू जो भी फसल करना चाहता है वो जल्दी होगी, अच्छी होगी, तुझे भी अच्छा पड़ेगा। क्योंकि इतना बड़ा जो खेत है वो तू अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हें 5 आदमी और देता हूं। वो खुश हो गया, खेत भी मिल गया, 5 आदमी भी मिल गए, सबको साथ में लेके खेत में गया, फसल बोना चालू कर दिया। वो 5 भी काम करते थे, पहले तो वो भी करता था। बाद में उसने सोचा कि मुझे खेत दिया है, ये 5 व्यक्ति मुझे दिए हैं, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मैं बैठा रहूंगा, इन लोगों को कहूंगा ये काम करेंगे, ये सब मेरे नौकर है। वो बैठने लगा, 5 को काम सौंपने लगा, 5 के 5 काम करने लगे। धीरे 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 काम सौंपता था, घर में सो जाता था, वो 5 करते थे। 5 ने भी देख लिया कि ये तो देखने के लिए आता नहीं है, तो जितना होगा उतना करेंगे, बाकी का हम भी आराम कर लेंगे। उन लोग ने भी आराम करना चालू कर दिया, जितना होता था करते थे, बाकी आराम कर लेते थे। धीरे 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 साल पूरा हुआ, और साल जब पूरा हुआ तो देखा तो फसल पूरी उगी नहीं, आधे से ज़्यादा बिगड़ गई, और कुछ उगा भी नहीं, कुछ मिला नहीं। तो साहूकार को मैं क्या दूंगा? साहूकार आया, चलो 1 साल हो गया, फसल जो है आधे से ऊपर मुझे दे दो, बाकी की तुम ले लो। खेत में आके देखा तो फसल जैसा कुछ था ही नहीं, आधे से ज़्यादा फसल बिगड़ी हुई थी, कहीं जगह पे हुई नहीं थी। साहूकार ने कहा ये क्या सब हो गया? तुझे तो 5 व्यक्ति दिए थे, इतना इतना समय था, कुछ भी नहीं किया। तो कहा कि आपने मुझे 5 आदमी तो दिए थे, लेकिन क्या करूं, गलती मेरी ही है। जो मैं काम उनसे मुझे साथ में करना था वो नहीं कर पाया, न मैं उनसे करवा पाया, और ऐसा सब हो गया। तो ये सब हो गया, एक काम कीजिए, 1 साल और मुझे दे दीजिए,
मैं बराबर काम करके फसल करके मैं आपको दे दूंगा। साहूकार ने कहा, समय समाप्ति की घोषणा, तुम्हारा समय पूरा हो गया। क्यों पूरा हो गया? 1 साल मैंने दिया था, तुम 1 साल में कुछ नहीं कर पाए, 5-5 आदमियों के साथ कुछ नहीं कर पाए, आगे क्या कर सकोगे? समय समाप्ति की घोषणा, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस यहां से तुम्हारा काम खत्म, अब जैसे है वैसे जियो। यहां आप समझिए, यहां जो साहूकार है, ये साहूकार जो खेत देने वाला साहूकार है, ये परमात्मा है। जो हमें खेत मिला है, ये जीवन है। हम जो है स्वयं, ये हमारा शरीर, हमारा मन है। और जो 5 व्यक्ति दिए हैं, ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां है। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है और हाथ पैर है। ये 5 आदमी है। छठा मन हम स्वयं है। ये जो पूरा जीवन है, ये जीवन खेती है। उसने हमें दिया है, जाओ समय देता हूं, अच्छा फसल उगाना, अच्छा कुछ कमाना, मुझे भी देना, तुम भी रखना और सबको देना। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जो हम हमारे साथ करते हैं। ये मन को जो ये 5 मिले, मन का तो काम है उससे भक्ति करवा लेना, उससे कर्म करवा लेना, ज्ञान रूप से कर्म करवा लेना। हम सबको मिला है। दुनिया में जितने हर रोज जन्मते हैं, सबको ये 5 मिलते हैं, सबको खेत मिलता है। लेकिन हम सब करते क्या है? मन को इंद्रियों के साथ मिलके काम करना है, ज्ञान पूर्वक काम करना है, ये नहीं करते। मन इंद्रियों को आदेश देते रहता है, इंद्रियां अपनी दिशा में हो सके उतना करती है। जो लाके मन को देती है, मन वो ले लेता है और कुछ डिमांड करता है। इंद्रियों के पास मन करवाता जाता है, लेकिन जो फसल उगानी है, जो ज्ञान प्राप्त करना है, जो सत्कर्म करना है, जो मानवतावादी कर्म करने हैं, ये मन नहीं करवा पाता। मन अपने में ही रह जाता। ये जो आंखें मिली है, उसे अच्छा देख नहीं सकता, दूसरों की बुराइयां देख लेता है। ये जो हाथ मिले हैं, उसे कुछ दूसरों को दे नहीं सकता, दूसरों के छीनने में ये हाथ लगा दिए। ये जो पैर दिए हैं दौड़ने के लिए है, वो दौड़ नहीं सकता दूसरों के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए दौड़ता है। ये जो जीभ मिली है, सबसे अच्छा बोलने के लिए, भजन करने के लिए, स्तुति करने के लिए, यह जीवा से ये केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की प्रशंसा करेगा, या जब वो क्रोध में होगा तो यही जीवा से ये गाली गलौज करेगा। जो कान मिले हैं ब्रह्मनाद को सुनने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की वेदना को सुनने के लिए, परमात्मा के ज्ञान को सुनने के लिए, लेकिन जो भी कुछ ज्ञान मिला है, ये कान मिले हैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लग गए। दूसरों का कुछ गलत होता हो तो ये सब सुनने के लिए ये कान हमारे सतर्क हो गए। अब देखिए, हमें भी ये 5 मिला है, इस मन को काम करने के लिए ये 5 व्यक्ति मिले। लेकिन जैसे उस साहूकार ने काम कर दिया, कुछ किया ही नहीं, हमने भी वैसे ही किया। जो किया अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने लिए किया, और ये 5 को हमने बिगाड़ दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें भी परमात्मा को कभी ना कभी तो जवाब देना है। हमें ये शरीर मिला है, ये शरीर को लेके भक्ति की नाव में बैठना है। लेकिन जहां ये शरीर है, ये 5 हमारे साथ है, ये 5 को लेके हुए हमें भक्ति करनी है। आप नाव में बैठ जाओ तो पैर उतार के नाव में बैठोगे तो बैठ पाओगे? पैर को उतार दिया और नाव में बैठ गए, उधर उतर गए, चलोगे कैसे? जो आंखें हैं उसको निकाल दी और नाव में बैठ गए, आगे जाके देखोगे कैसे? जो कान मिले हैं उसको उतार दिए, बैठ गए, तो आगे जाके सुनोगे कैसे? भक्ति मार्ग में
नाव में जो हम बैठे हैं, मन और इंद्रिय के साथ हम सब बैठे हैं। इसलिए हमें जो भी भक्ति भाव करना है मन से करना है और पूरे तन के साथ करना है। जब आप भगवान का नाम स्मरण करो, आपका मन नाम स्मरण करे, लेकिन आपकी आंखें इधर उधर देखती रहे, तो आप बोलेंगे जरूर, लेकिन बोलने के बाद जो मन में धारणा होनी चाहिए वो धारणा नहीं रहेगी। आप जहां देखोगे वहां आपका मन भटकेगा। आप मंत्र का स्मरण करेंगे और आपके कान आजू बाजू के लिए खुला रखेंगे, तो आजू बाजू जो बोलेंगे उसमें ध्यान रहेगा। आप गाते भले रहेंगे, लेकिन आपके कान आजू बाजू का सुनेंगे। आपके जो हाथ है भगवान की पूजा में आप लगाएंगे, मन से के साथ पूजा तो करेंगे, लेकिन आपके हाथ ही नहीं चलेंगे तो पूजा होगी कैसे? भगवान ने आपको जीभ दी है, मन से बोलेंगे, लेकिन अगर मुख से ध्वनि ही नहीं निकल पाया तो वो काम होगा कैसे? अगर भक्ति करनी है मन से, तन से, बुद्धि से, चित्त से, सबको साथ में लेके हमें भक्ति की नाव में बैठना है। और हम जहाँ भक्ति नाव में बैठ गए और जैसे जैसे हमारे भक्ति मार्ग आगे आए, तो भक्ति की जो नाव चलाने वाला है, वो नाव चलाने वाला हमारा सद्गुरु स्वयं है। मैंने यहाँ लिखा ही है कि भक्ति नाव में बैठ के आया। हमें तो बैठना ही है, चलाना भी नहीं है। चलाने वाला तो हमारे सामने बैठा है, हमें तो सिर्फ बैठना है। और बैठे हुए चलाने वाला जो हमें कहे उस प्रकार हमें करना है, बाकी हमें तो बैठना ही है। जैसे नाव जब चलाते हैं तो चलाने वाला नाविक सामने होता है, बैठने वाला उसके सामने आमने सामने होते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु हमारे सामने है और हम उसके सामने, नाव में हम बैठे। वो जो कहे वो सुनते रहना है, मन से उसे ग्रहण करना है, क्योंकि आगे जाके जब किनारे पर हम उतर जाएंगे तब उसने जो कहा उसी हिसाब से हमें चलना होगा। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि जिस किनारे पे उतरेंगे वहां क्या करना है, वहां का रास्ता कैसा है, वहां क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन उसने जो बैठ बैठ के हमें ज्ञान दिया है, वही ज्ञान का उपयोग दूसरे किनारे की ओर जाके करना है। और गुरु जब ज्ञान देता है तो शिष्य के सन्मुख रहता है, और गुरु जब ध्यान देता है तो शिष्य के पीछे खड़ा रहता है। ज्ञान जब मिलता है गुरु और शिष्य सन्मुख, और ध्यान जहां गुरु देता है वहां गुरु शिष्य के पीछे रहता है। यानी ज्ञान के समय गुरु आगे, और शिष्य के पर गुरु ध्यान दे तो गुरु उसके पीछे। ये दोनों भूमिका, मार्गदर्शक और मार्गदर्शन, ये दोनों भूमिका गुरु की होती है। भागवत गीता जो है उसमें उसका चित्र देखिए, तो कृष्ण सामने है और अर्जुन के सामने कृष्ण है, वहां ज्ञान। तो ज्ञान चर्चा जहां होती है वहां कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, और जहां कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं और जहां युद्ध हो रहा है वहां कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन देते कि मैंने जो कह दिया अब तुझे वही करना है, तेरा सुकान मेरे हाथ में है, अब तू करते जा, रुकना नहीं है, तुझे कर्म करना है। तो उसी हिसाब से गुरु जब ज्ञान दे तब सन्मुख हो जाते हैं, और गुरु जब हम पे ध्यान दे तो हमारे पीछे खड़े रहते हैं। इसलिए कहा गया कि घाबरू न कोमी पाठीसिया है, क्यों पीछे है? गुरु इसीलिए आपके पीछे है कि आप कैसा जा रहे हो उसके ऊपर ध्यान देने के लिए वो पीछे से खड़ा है। बच्चा जब चलने लगता है तब वो पहले चलता नहीं, बच्चे की चलने की शुरुआत दौड़ने से होती है। आपके जितने भी बच्चे हैं, हम सब
हम सब ने जब जीवन में चलना चालू किया तो चले नहीं, पहले हमने दौड़ना चालू किया। हर एक बच्चा पहले दौड़ता है, जोर से दौड़ता है, वो चलेगा नहीं, वो दौड़ेगा। और पहले दौड़ता है, बाद में गिरता है। हम सब गिरे थे। जब हमने चलना चालू किया तो पहले हम दौड़े, बाद में हम गिरे। जब हम दौड़ते थे, माँ पीछे पीछे दौड़ती थी, और जैसे हम दौड़ते जाएंगे माँ पीछे पीछे आवाज लगाएगी, संभल के दौड़ना, संभल के दौड़ना। माँ पीछे पीछे, हम आगे आगे। जब हम गिरते थे तो हम पीछे देखते थे, और जैसे हम पीछे देखते थे माँ के उठा लेती थी। बस यही काम गुरु का है कि आप ये संसार सागर में आप दौड़ रहे हो, हमने दौड़ना ही चालू कर दिया है। भागो, पैसा पाछड़ दौड़ो, प्रॉपर्टी पाछड़ दौड़ो, भोग विलास दौड़ो। दादा પાસે આવી ગયા, આશીર્વાદ આપી દેતા, દોડતા થઈ જાઓ। ચટમંગની પટબિયા જટ છોકરું બધું એક જ ઝટકે આવી ગયું, બસ દौड़ता થઈ જાઓ। यानी हमने भी तो वही किया, दौड़ने लगे। लेकिन जब इतना याद रखिए, आप गुरु के शरण में आते हो, हम सब दौड़ने के लिए आते हैं। गिरते भी है, वो संभालता है, लेकिन हमेशा हम दौड़ते नहीं रहते। जैसे हमने चलने की शुरुआत की, दौड़ने सीखी, गिरे, और बाद में दौड़ना बंद कर दिया, चलना चालू कर दिया। चलने के बाद हम नहीं गिरे। ठीक उसी प्रकार हम सब यहां दौड़ने के लिए आए हैं। हम दौड़ रहे हैं, गुरु पीछे है। जहां गिरेंगे वहां वो उठा लेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां हमारा दौड़ना बंद हो जाएगा, हम धीरे धीरे चलना चालू कर। हबकी न बोलीबा, ठबकी न चालीबा, धीरे धरीबा पाँव। कि धीरे धीरे धरीबा पाँव, धीरे धीरे हमने पाँव धरना चालू कर दिया। यह गोरख बानी। हबकी न चलीबा, हबकी न चलीबा, ठबकी न बोलीबा, धीरे धरीबा पाँव। गर्व न करीबा, सहजी रहीबा, बोलिया गोरख राव। ये गोरख बानी कि झट झट बोलना नहीं चाहिए, इसे लगाम, कंट्रोल करिए। और जीवन में दौड़ते भी नहीं रहना चाहिए, अटकते अटकते हुए संभाल संभाल के पैरों को रखना चाहिए। गर्व नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। बोलिया गोरख राव, गोरखनाथ स्वयं बोलते हैं। और जब हम चलना चालू कर देते हैं, बाद में हम कभी नहीं गिरते। ज्ञान पूर्वक हम चलते हैं। दौड़ने में ज्ञान नहीं लगता, आंख बंद करके दौड़ते हैं। चलने में ज्ञान लगता है, आंख खोल के हम चलते हैं। कोई गिर जाए, कोई पड़ी जाए तो આપણે કહીએ ને એવું આંખ બંધ કરીને દોડ દોડ કરે, પણ ચાલતો માણસ જોઈને ચાલે કે નથી ચાલતો? बस जब हमने चलना चालू कर दिया तो समझ लीजिए कि ज्ञान पूर्वक, कानों से जो सुना था, आंखों से जो देखा था, जो मन से हमने बोला था, वही को रटते हुए हम धीरे 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 चलते। यह है भक्ति मार्ग। कि भक्ति मार्ग में दौड़ना नहीं है, भक्ति मार्ग चलने का मार्ग है। जो भक्ति मार्ग में दौड़ता है वो गिर जाता है। भक्ति मार्ग में जो चलता है, धीरे धीरे पाँव, धीरे 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 जो चलता है, वो वहां तक पहुंच जाता है। और इसलिए कहा गया है कि भक्ति मार्ग में जो आता है उसे धीरज रखनी पड़ेगी। आगे आएंगे प्रवचन धैर्य लक्ष्मी के रूप में। तो भक्ति मार्ग में जो आ जाता है, भक्ति धीरे धीरे होती है, 12-12 साल तक होती है। लेकिन भक्ति होती कैसे है? सबसे पहले भक्ति श्रवण से होती है, कान से सुन के। जो हमें बोध मिला है उसे सुनिए। हर गुरुवार के जो प्रवचन होते हैं, बार बार सुनिए। एक बार नहीं, बार बार सुनिए, सुनते जाइए। जितनी बार सुनेंगे कुछ नया मिलेगा। सुनते रहिए। हम जब पैदा हुए तो हम जो गुजराती भाषा बोलते हैं, कोई हिंदी भाषा बोलता है, कोई मद्रासी बोलता है, पैदा होने वाला जो भी होता है बच्चा, उसे ये भाषा नहीं आती। मातृभाषा जो होती है सुन सुन के आ जाती है। अंग्रेजी सीखनी पड़ती है।
लेकिन जिस गांव में हम जन्मते हैं और वहां जो भाषा बोलते हैं वो सिखानी नहीं पड़ती, हम बोलना चालू कर देते हैं। आजू बाजू के जो बोलते हैं वो सुन के बोलना चालू कर देते हैं। तो अगर हम सुन के ही बोलना चालू कर देते हैं तो गुरु का बोध ये भी है कि जो गुरु जो बोध देते हैं उसे सुनते रहिए, बोलिए कुछ मत, उसे सुनते रहिए, समझ में आए ना आए सुनते रहिए। जो आप सुनते हो और वही धीमे धीमे बोलने लगोगे, जो तो गुरु का बोध जो आप सुनोगे वही बोध आपके जीवन में आचरण के रूप में आ जाएंगे, कर्म के रूप में उतर जाएंगे। जो बोध होता है कानों से पढ़ा हुआ होता है वो आगे जाके अपने आचरण में वो दिखता है। इसलिए कभी हम कुछ गलत कर दे तो लोग हमें बोलेंगे કેમ દાદાને જાય તો આવું કરે, કેમ બોલે? જે સાંભળ્યું છે ને તે પ્રમાણે તમે કર્યું જ નથી. તમે બોલે પણ બદનામ કોણ થાય? જે ગુરુનતા જાય તે ગુરુ બદનામ થાય. એટલે ઘણી વખતે આપણે કંઈ ખોટું કરી દઈએ, કંઈ બોલાચાલી થઈ જાય, કે બોલી દઈએ, કંઈ કરીએ તરત જ કેમ ગુરુવારે જાય તો તમને આવું શીખવે. હવે એ લોકોને બી ખબર છે આવું નથી શીખવતા, પણ તમને પૂછે કે ગુરુવારે જાય તો આવું શીખવે. હવે તમને ખબર કે નહીં અહીંયા હું શીખવાય છે, પણ છતાં બી બોલે આવું શીખવે. તમારાથી જવાબ નથી અપાતો. કેમ? તમે એવું કર્યું જ એવું છે કે તમે જવાબ નથી આપી सकता. तो जो सुना है सुनते रहिए. फिल्म का अगर गाना हो वो फिल्म का गाना हम सुनते रहते हैं, बाद में जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता और ऐसे ही जब बैठे हैं तो वही गाना हम गुनगुनाते हैं. अब आप सोचिए, जो गाना हम सुनते हैं क्या लिखा है पता नहीं, गाने में क्या अर्थ है वो पता नहीं, लेकिन जब हम ऐसे ही बैठे हैं तब वही जो सुना है वो गुनगुनाते हैं. अर्थ क्या हुआ कि गुरु के बोध को सुनिए. पहला भक्ति मार्ग कैसे करे सुनिए, समझ पड़े या न पड़े सुनते रहिए. जो सुनोगे लिख के रखिए, कभी ना कभी काम आएगा, अपने आचरण से वो काम आएगा. सुनते रहिए. दूसरा, जो आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है वो आपको इच्छा हो ना हो, आपकी रुचि हो ना हो, लेकिन दिन में ज्यादा नहीं, आप माला भी मत करिए, लेकिन जीवन दिन के जितने भी काम करते हैं वो काम करने से पहले एक बार वो मंत्र बोलिए. सुबह में जब उठते हो तो गुरु मंत्र बोलिए. जैसे आंख आपकी खुली वैसे सबसे पहले मन में गुरु मंत्र बोलिए और बाद में उठिए. बिस्तर से नीचे उतरते हो सबसे पहले गुरु मंत्र बोल के धरती के ऊपर पैर रखिए. स्नान करने के लिए जाते हो तो स्नान करते समय गुरु मंत्र बोलिए, एक बार बोलिए और अपने ऊपर लोटा डाल दीजिए. आप दांत साफ करने के लिए जाते हो वहां भी एक बार गुरु मंत्र बोलिए, उसके बाद शुरू करिए. आप जब मंदिर में दिया लगाते हो तब भी बोलिए. आप जब नाश्ता करने के लिए जब चम्मच मुंह में डालते हो एक बार बोलिए, बाद में डालिए. घर से जैसे बाहर निकलते हो वैसे बाहर जब पैर रखे एक बार बोलिए. जो जो दिन में आप कोई भी काम पहली बार जब करते हो एक बार जरूर बोल लीजिए. रात को जब सोते हो तब भी बोलिए, सो जाइए. दिन में खाना खाते हो तब भी एक बार बोलिए और खाइए. गुरु मंत्र के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि उसमें माला ही चाहिए. यह तो हाथ की माला है, मन की माला घूमनी चाहिए. इतना अगर आपने नियम बना लिया तो जो भी आपकी जो क्रिया है, श्वासे श्वासे प्रकृत दत्त नाम स्मरेत, कि ये क्रियाओं के साथ आपने उस नाम को जोड़ लिया तो समझ लीजिए कि आपका अजपा जाप शुरू हो गया. आगे जाके वो आगे बढ़ता जाएगा. यानी जो बोले वो सुनिए. जो मंत्र दिया है हर एक काम करने से पहले एक बार मन में बोलिए.
जो भी काम करने से पहले आप मन में बोलेंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा, कभी आपका निष्फल नहीं होगा। मैं तो वहां तक कहता हूं कि आप शौचालय में जब जाओ तो शौचालय में भी जब बैठो तब भी मन से बोलो। हम सोचे कि आ तो खराब कहेवाय एम के ત્યાં કા બોલવાનું, તો જે પેટમાં પડી રહેલું છે તે દાદા તમે એમ કે આવું કે એમ કે સંડાસમાં બોલવાનું બોલવાનું સંડાસમાં ભગવાન નામ બધે બોલાય, એ બધે જ છે, એ તો ત્યાં પણ તમને જોઈ છે, ચાલો એ તો ત્યાં પણ છે, દરેક જગ્યા ઉપર છે, એના સીસી કેમેરા બધે જ છે, પણ ત્યાં કેવી રીતના બોલે, કેટલું ખરાબ કહેવાય, એ તો હવારના તમને ખરાબ દેખાય છે, પણ આખો દાડો અહીંયા પડ્યું છે તે એને લઈને તો તમે પોટલું લઈને તો ફરો છો બધે. વિચાર કરો, જે તમારું નીકળ્યું છે તે અંદર જ છે, થેલીમાં લઈને તો ફર્યા કરો છો અહીંયા તો અહીંયા બધે. ક્યારે નથી વિચાર આવતો કે આ પડેલું છે તો કેમ બોલી? એ જે પડેલું છે એમાં કેટલું બધું છે, જે નોનવેજ ખાય તેમાં તે બી અંદર ભરાયું છે, દારૂ પીધું છે, તંબાકુ ખાધું છે, આ બધી ગટર છે અહીંયા. એ બધી કોઠડી લઈને આપણે ફર્યા કરીએ છીએ. ત્યારે ખરેખર શૌચ જ્યાં સફાઈ થાય છે ત્યાં તો મનથી બોલવું જોઈએ, કે જેથી કરીને અંદર અને બહાર આપણે પવિત્ર થઈએ. સ્નાન કરીએ ત્યારે મનથી બોલવું જોઈએ, અંદર અને બહાર પવિત્ર થઈએ. તો જો નામ દિયા હૈ બોલીએ. કાલથી ચિંતા નહીં કરતા, કાલથી ત્યાંથી જ શરૂઆત કરજો બધા. તો તમને એમ યાદ આવે કે નહીં આવે, ત્યાં જઈને મારી યાદ આવે, તમે ત્યાંથી શરૂ કરો બધા. तो उसे बोलिए. बाद में जो आपको जो ग्रंथ दिया है उसे पढ़े ना पढ़े उसका दर्शन कीजिए. ये भक्ति ग्रंथ जो है आप पढ़े ना पढ़े मंदिर में रखिए, उसका दर्शन कीजिए हर रोज. गुरु के जो ग्रंथ है, नवनाथ चरित्र ग्रंथ, गुरु महिमा ग्रंथ, गुरु वाणी ग्रंथ, भागवत गीता, गुरु गीता, किसी के घर में वेद हो तो वेद, उसका दर्शन कीजिए हर रोज. ये शब्द ब्रह्म है. कभी ना कभी अगर आप हर रोज उसको देखते रहेंगे, जिंदगी में कभी ना कभी उसको पढ़ने की इच्छा होगी. देखते रहिए हर रोज, एक बार भी उसका दर्शन कीजिए. आपके पास जो गुरु की छवि है उसका दर्शन अवश्य कीजिए. आपके पॉकेट में रखा है तो पॉकेट में गुरु का फोटो होना ही चाहिए. घણા હોય કે એમ કે દાદા આમાં ફોટો કેવી રીતે રાખીએ, કોઈ જોઈ તો તમારું પાકેટ બીજાને બતાવવાનું રાખ્યું છે. કોઈ એમ કે એમાં જોઈ તો તમારા બૈરીનો ફોટો મૂકે, પોયરાનો ફોટો મૂકે તે બધું ચાલે. હવે તો મોબાઈલ આવી ગયા છે, પાકેટમાં હું કાં મૂકો? મોબાઈલની અંદર ભલભલા ફોટા હોય, તમારા કેવા કેવા ફોટા તમે મૂકો છો અંદર. બધા તૈયાર થઈને ફોટા પડાવે, આમથી પડાવે, વાંકો થાય, ચૂકો થાય. પેલા સેલ્ફી પાડે ત્યારે મોઢું વાંકું થાય, ઉપર થાય, નીચે થાય, બધા મૂકો તમે. તો મારું તો એવું માનવું કે પહેલો ફોટાની ઉપર પહેલું સ્ક્રીન જે ગુરુને માનતા હોય એની, અથવા તો જે ભગવાનને માનતા હોય એના ફોટા હોવા જ જોઈએ. એના ફોટા જો અંદર હશે તો એટલું યાદ રાખજો, તમારો મોબાઈલ ખોટું જોવામાં નહીં ચાલશે. વાઇબ્રેશન ત્યાં પણ હશે જ હશે. होना ही चाहिए. ये तो आपने शर्माइए, हम शर्माते हैं, बाकी के धर्मों में कोई शर्माता नहीं. तो गुरु की छवि के दर्शन कहीं ना कहीं प्रतिदिन होने चाहिए. साथ साथ जो भी आप भोजन करो, वो भोजन खाने से पहले एक बार उसमें से एक निवाला भगवान के लिए होना चाहिए. एक निवाला भगवान के लिए होना चाहिए. जो भी भोजन आप खाओ, एक निवाला भगवान के लिए. एक निवाला भगवान को देने से वो ग्रहण करेगा और बाकी वो प्रसाद कहलाएगा. वो उसमें सात्विकता आ जाएगी, जो खराब है वो चला जाएगा. हमारा शास्त्र यही बोलता है कि भोजन करने से पहले एक निवाला निकाल ली. अब हम सोचेंगे वो निवाला जो निकाल दिया वो तो गटर में जाने दीजिए, एक निवाला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गटर में भी जीव जंतु होते हैं, उसे भोजन मिल जाएगा, उसमें भी परमात्मा तो है. अगर नहीं जाने देना है तो कुछ बात नहीं, निकाल दीजिए, और जब हो जाए तो प्रसाद समझ के वापस खा लीजिए, मगर एक बार भगवान के लिए उसे निकाल दीजिए. तो ये भी होना चाहिए.
रात को जब आप घर पे आए और घर पे हाथ मुंह धो के जब दिया बत्ती जलाए, हर रोज शाम को दिया बत्ती करे। मैं कहता हूं एक बार सुबह में चूक जाए तो चलेगा, नौकरी धंधे के लिए जाना है, टाइम नहीं, चूक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। लेकिन घर में जब शाम को आओ, आप ध्यान में रखिए, आप बहुत नेगेटिविटी लेके आते हो आप घर में शाम को, पूरी दुनिया में घूम के, कितना कुछ गलत देख के, कितना कुछ गलत सुन के, या कितना कुछ आपकी आजू बाजू में से गलत लोग पसार हो जाते हैं, बहुत कुछ गलत लेके आप घर में आते हो, ये नेगेटिविटी। शाम को जो आप घर में आते हो, नेगेटिविटी लेके आते हो, और ऐसे ही आएंगे, हाथ पैर साफ नहीं करेंगे, घर में रोग आएगा। सुबह में नहीं होगा, शाम को होगा। ये संध्या के समय पे बाहर से जैसे घर में आए, जूते पहले बाहर निकालिए। ये जूते जब घर में आते हैं तब समझ लीजिए कि रोग चाड़ो ताथी जावे से घर में, पहले बाहर निकालिए। सीधे आइए, सीधे बाथरूम में जाइए, हाथ पग धोए, स्नान करें, जो करना हो पहले करिए। करने के बाद दिया लगाए शाम को, अगर हो सके तो सबके साथ बैठ के, नहीं तो अकेले। शाम को हर एक व्यक्ति के घर में दत्त बावनी, नवनाथ बावनी, कुछ भी उसका पाठ होना चाहिए। बाद में साथ में भोजन कीजिए, और जब साथ में भोजन करें तो जो भी कुछ प्रवचन में सुना है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है, जो भी कुछ है, या दिन भर के जो अच्छे अनुभव है, उसकी चर्चा करें। घना फैमिली हुआ था कि जने प्रयोग કર્યા છે, कई फैमिली ऐसे थे जिसने पूरे विश्व में ऐसा प्रयोग हुआ है कि जो कुछ पढ़ते थे, शाम को जब भोजन के लिए बैठते थे, वो जो कुछ पढ़ते थे उसकी चर्चा उस जगह पे होती थी, तो बच्चों में अपने आप वो संस्कार आ गए। तो जहां जब हम भोजन करें, वहां बैठ के इसने ये किया, उसने वो किया, वो ये करता है, ये बंद कर दीजिए। તમે જ્યારે જમો ત્યારે હું ફલા બાજુવાળા હું કહી ગયા, આગળવાળો હું કહી ગયો, પાછળવાળો હું કહી ગયો, ઉપરવાળો હું કહી ગયો, આ બંધ કરી નાખો। બધું તોફાન તાથી જ ચાહી છે જમવાની થાળી પરથી। तो जब आप भोजन करें, जो आप में अध्यात्म है उसकी चर्चा करें बैठ के, बच्चे भी सुनेंगे। ये भोजन का समय ही ऐसा है जब आप सबको अपने परिवार के लिए टाइम मिलता है। एक बार भोजन करने के बाद चले गए એટલે પેલો કીક મારીને પાનના ગલ્લે પહોંચી જાય, પેલી પાછળ કામ રસોડામાં નીકળી જાય, પેલા મોબાઈલ લઈને બેડરૂમમાં જતા રહે, પતી ગયું। ઘર છે કે શમશાન ખબર જ નહીં પડે પછી। અને ઘણાને ટીવી જોવાનો શોખ હોય, ટીવી ચાલુ કરીને આમ બેહી રહે, અને એની આજુબાજુમાંથી શું થઈ જાય તે બચારાઓને ખબર નહીં પડે। તો આ બધું ક્યાંથી આવ્યું? एक ही समय ऐसा है, पर जो कि अब तो ऐसे हो गया है कि खाने पीने का समय सबका बदल गया। पहले साथ में खाते थे, अब नहीं रहा। हमारा घना वक्त एवं बने कि पोयराओ बहार ज नास्तो करीने आवी रहे, जे लारी गल्ले मळतुं होय ते ज खाई ले। मैं कहूँ तो लारी गल्लेनुं खाओ, वांधो नहीं, घरमां लावीने खाओ, पण बधा भेगा थईने खाओ। जो भी है साथ में बैठिए। ये खाने का समय ही ऐसा होता है जहां सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वहां चर्चा अच्छी होनी चाहिए, और वहां जो भी आयोजन है वही अच्छा होना चाहिए। वहां बैठ के शांति से बातें होगी, संस्कार आएंगे, उसी जगह से आएंगे। और बाद में जब सो जाए, जब सोने के लिए जाए, तो 10 मिनट जब सोने के लिए आप बिस्तर में पड़ो, भगवान को प्रार्थना करके 21 बार गुरु मंत्र बोल के, एक बार आपने गुरु मंत्र बोल दिया, बाद में किसी से बातें नहीं करनी है, आंख बंद करके सो जाइए। यानी तभी सोने के लिए जाए जब आपकी बोलना आपका बंद होना है। और जो फोन होता है उसको भी बाजू पे रख दीजिए, और बाजू पे रख के सो जाइए। पहले तो भक्ति मार्ग में ये सब चीजें लाए, मंत्र, प्रवचन, भजन, दीवाबत्ती, स्तुति, ग्रंथ का पाठ, ये भक्ति मार्ग, सहज भक्ति मार्ग, उसको चालू कर दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति मार्ग में 2 चीज बन जाएगी। एक चीज ऐसी बनेगी, भाव सातत्यता आएगी, और दूसरी चीज जो होगी निष्ठा, उसकी सातत्यता। भाव की सातत्यता बढ़ेगी तो प्रत्येक वस्तु में आपको भगवान के दर्शन होंगे। अन्न पर ब्रह्म, अन्न मां भगवान। और इसलिए हमारे लिए तो सब श्लोक, स्नान के श्लोक अलग है, ये सब भक्ति में ही किया गया है।
भाव सातत्यता आएगी तो प्रत्येक पदार्थ भगवान के साथ जुड़ेंगे। जिस प्रकार मिट्टी का ढेर, मिट्टी हो, हम मन से सोचे गणपति बनाने हैं तो गणपति बन जाते हैं। मिट्टी में सोचे कि हम शिवलिंग बनाना चाहते हैं, शिवलिंग बन जाता है। ये भाव, जहां भाव आ जाएगा प्रत्येक वस्तु में, वहां श्रद्धा बढ़ेगी। भाव आएगा, उसके दर्शन होंगे। और भाव क्या रहेगा? ये जो कुछ है, अन्न पर ब्रह्म, पानी है पर ब्रह्म, वसुदेव को परिवार, मेरा पूरा परिवार, वसुदेव कुटुंबकम, सब परमात्मा ने दिया हुआ है। सब में भाव आएगा। आपके काम में भी भाव आएगा। काम करने में भाव आ गया, प्रामाणिकता से काम होगा। प्रत्येक वस्तु में भाव पैदा होगा। क्योंकि भक्ति मार्ग में भाव नहीं हो तो यह भक्ति आडंबर बन जाएगी। भक्ति मार्ग इतना सेंसिटिव मार्ग है कि उसमें से एक सेकंड के लिए भी भाव चला जाए, आडंबर हो जाएगा। यहां मैं बैठ के बोलूं, यहां से नहीं बोलूं, ये मैं भाव से नहीं बोलूं, तो मैं जो बोलूं ये सिर्फ और सिर्फ कथाकार के जैसा आख्यान। मैं जो बोलता हूं यहां से बोलता हूं। मेरा बोला हुआ आपको कभी किताब में भी नहीं मिलेगा। और मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलता हूं, जब तक मेरे अंदर भाव है तब तक मैं बोलता हूं। मैं घड़ी की ओर नहीं देखता, मैं पहनता ही नहीं। घણા લોકોને એવું થાય, દાદા બહુ લાંબુ બોલે, શું કરીએ હવે? તમારા પર એટલો પ્રેમ છે તો આ થયા કરે, હવે શું કરવાનું? બોલો ને, ચલો. અને હું લાંબુ બોલું છું એની ના નથી, પણ તમે બી લાંબુ સાંભળે છે તે તમે સાંભળવાનું બંધ કરી દો. તમે બંધ કરી દો. તમે કોરોનામાં નહીં આવ્યા તો બી હું તો ચાલુ જ રાખ્યું છે. મારામાં ભાવ છે અને મને નિષ્ઠા છે. ભાવથી હું બોલું છું અને મને શ્રદ્ધા છે કે હું જે કંઈ બોલું છું તે બધું તમારી અંદર એક જ સેકન્ડમાં ઉતરી જાય છે. આ મને શ્રદ્ધા છે. અહીંયા આવનારો કોઈ ભક્ત એવો નહીં હોય કે જે અહીંયાથી બોલાયેલું હોય એ એક પણ વસ્તુ એનામાં ન ઉતરી હોય. ગુરુનો આદેશ તમારામાં એક જ સેકન્ડમાં ઉતરી જ જાય છે. અને એટલે બધા સાધુ સંતો અહીંયા આવે છે તો અમથા વખાણ નથી કરતા. बालकनाथ जी आवेला थे, बालकनाथ जी पोते कीधुं कि दादा हम वहाँ हरियाणा में है, लेकिन आपके भक्तों में जो आपने बोया है वो वहाँ हमें नहीं मिलता है. चलो, योगी आदित्यनाथ जी एमणे पण कीधुं कि जे भाव ત્યાં જોયો એવો કશે नहीं જોયો. तो मैं भाव से बोलता हूँ और मुझे निष्ठा है कि आप श्रद्धा से सुनते हैं. तो भाव सातत्य और निष्ठा का सातत्य ये होना ही चाहिए. अगर भक्ति में भाव और निष्ठा नहीं है तो मैं ऐसा मानता हूं भक्ति नहीं करनी चाहिए. आडंबर ही नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए. अगर ये आडंबर हमने किया तो समझ लीजिए कि ये पापाचार है. जो चीज हमें नहीं जमती हम नहीं कर सकते, जो चीज हमें नहीं अच्छी लगती हम नहीं खाते, जो चीज में हमारी रुचि है हम नहीं करते. तो भक्ति में भी भाव और निष्ठा न हो तो क्यों करनी चाहिए? भगवान को हमें बनाना नहीं चाहिए. भगवान ने हमें बनाया है, उसको हम क्यों बनाएं? भाव और निष्ठा से काम करें, भक्ति करें. भाव और निष्ठा का सातत्य रहा तो मैंने यहाँ लिखा ही है प्रत्येक वस्तु में दर्शन होंगे. इसलिए तो अन्न पर ब्रह्म, जल को भी ब्रह्म बुला गया. कहीं कहीं धर्मस्थानों में जाओ तो वहाँ भोजन भी, जब खाना परोसते हैं वहाँ रोटी राम, जल राम, सब कुछ, सब्जी तो सब्जी राम, ये राम का नाम लेके परोसा जाता है. तो पूरा विश्व भावमय हो जाएगा. निष्ठा आपकी बढ़ेगी और जैसे आपकी निष्ठा बढ़ेगी वैसे समझ लीजिए कि आपके अंदर का जो मैं और वो अलग है ये भाव स्थिर हो जाएंगे, परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे. 12-12 साल तप करने की जरूरत नहीं है. कोई कहे ऐसा करो और भगवान मिले, भगवान किसी के कब्जे में नहीं है. भगवान किसी के कब्जे में नहीं है. भगवान सबका बाप है, भगवान किसी का बेटा नहीं. और बेटा हो के जो जन्मे वो भगवान होत नहीं. यानी भगवान, मैं कहूँ ऐसा ही करो भगवान मिले. भगवान किसी का गुलाम नहीं, भगवान के सब गुलाम है. तो आप जो भी कुछ करो उसमें अगर आपकी निष्ठा बढ़ी, आप स्वयं परमात्मा के समीप ही हो, उसकी गोद में ही हो. हमें पता ही नहीं कि हम उसकी गोद में.
वहाँ तक आप जुड़ जाओ। और वहाँ तक अगर हम जुड़ गए तो समझ लीजिए कि संसार में जितनी भी आपत्ति आती है, आपत्ति आएगी लेकिन कष्ट नहीं होगा। जो आपत्ति आवશે, દરેકને આપત્તિ આવશે, સંસાર છે, પણ એટલું વસ્તુ યાદ રાખજો, દુઃખ થશે પણ કષ્ટ નહીં થશે. આજે આપણે અહીંયા 100 મારો ને, ડૉક્ટર આપણું લોહી લેવાનું હોય તો અહીંયા 100 મારે, દુખે, પણ લોહી 1 સેકન્ડમાં લઈ લે, આપણે કષ્ટ નથી થતું. તે પ્રમાણે આપત્તિ આવશે, દુઃખ થશે, અને દુઃખ નહીં થાય તો પછી બધું નકામું છે. દુઃખ થશે તો જ ભગવાન યાદ આવે ને, બાકી એમ કોને યાદ આવે? ચલો મને બતાવો. બધાને તકલીફ પડે ત્યારે ભગવાન યાદ આવે, દાદા ત્યારે જ યાદ આવે તકલીફ પડે ત્યારે. હવે તકલીફ પડી, હવે જવું જ પડે. માંદા પડી ગયા, કંઈ બી થાય, છેલ્લે કંઈ નહીં તો દોરો બી લાવવો જ પડે. એટલે પછી મેં વિચાર કર્યો અહીંયા આટલા દોરા જલ્દી પૂરા કેમ થઈ જાય, પણ પેલાના પાર્સલ ચાહી બધાને તમારે. પેલો કહે કે મારો એક લાવજો, પેલો કે મારો. ત્યાં તમે ઘરેથી નીકળો ને અહીંયા સુધી આવો, એમાં કમસે કમ 10 જણા તમે પાસે દોરા મંગાવી લે. પેલો રિક્ષાવાળો હોય તે બી મંગાવી લે, મારા હારું બી લઈ લેજો ને, બધા મંગાવી લે. પછી ખબર પડે આવ્યો છે 1 અને જાય છે 5, એટલે દર ગુરુવારે દોરા પૂરા થાય. પેલી ભસ્મ પૂરી જ થઈ જાય. એક જ ભસ્મ નહીં, ચપટી ભભૂત, ચપટી ભસ્મ લો એટલે કામ થઈ જવું જોઈએ. પણ પછી ખબર પડે કે માંગવા જાય ને તમને જોઈએ તેટલી લઈ લો, તો જોઈએ તેટલી એટલે 10-15 પડીકા જતા રહે. અહીંયા ગુરુયાગ કર્યો, 2013માં ગુરુયાગ કરવામાં આવ્યો, અને ગુરુયાગ કરીને ભસ્મ બધી અહીંયા ઠંડી પડતી હતી, અને બીજા દિવસે આપણી મોટી શોભાયાત્રા હતી. એટલે આ લોકોએ મને કીધું, મેં કહું જાઓ ભસ્મ ઠંડી પડવા દો, કાલે પછી આપણે સવારે લઈ લેવું. યજ્ઞ પછી તો રાતના 7 વાગે, અને સવારના 7 વાગે આવીને જોયું તો કુંડ ખાલી થઈ ગયું. આ કુંડ ખાલી થઈ ગયો. તો એમ કે દાદા બધા જે રાતના રોકાયેલા હતા ને બધા લેતા ગયા. એમ કે કેટલી લઈ ગયા, તો જેના હાથમાં જે આવ્યું તે તગારો હોય તો તગારાથી લઈ ગયા, વાડકું આવ્યું તો વાડકાથી લીધી, ચમચું આવ્યું તો ચમચાથી ખબડીને લઈ ગયા, ખાડો કરી ગયા. એમ ત્યારે મને થયું કે આ જે આવ્યા છે લેવા માટે અતાપ 200-300 જણા રાતના, અને લઈ ગયા 2-3 હજારની ભસ્મ લઈ ગયા અહીંયાથી. હવે વિચાર કરો. તો કહેવાનું મારું તાત્પર્ય છે કે આપ જો ભી કુછ કરો, અંતે दुख થશે. दुख तो होगा, कष्ट नहीं होगा. तकलीफ आएगी, नुकसान नहीं होगा. जब भूकंप होता है तकलीफ आती है, जब आंधी आती है तकलीफ आती है. बेघर नहीं होंगे, रेल आएगी, पानी आएगा, आप नहीं डूबोगे. यानी दुख होगा, कष्ट नहीं होगा. तकलीफ आएगी, नुकसान नहीं होगा. अगर आप सातत्य के साथ जुड़ गए कुछ नहीं होगा. लेकिन भाव सातत्य और निष्ठा से सातत्य भक्ति मार्ग में जरूरी है. बिना भाव और निष्ठा का सातत्य ये आडंबरवाद है. इससे अच्छा है कि आप नास्तिक रहो. भगवान ने मानो ज नहीं, बहुत सारू है, પણ અમે માનીએ છીએ એવો દોડ કરો, આ મોટામાં મોટું પાપ છે, પાખંડ છે. एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में गया, और भगवान के मंदिर में जाके व्यक्ति बोलने लगा कि हे भगवान, कल मेरा इंटरव्यू है, मेरी नौकरी लग जाए तो मैं तुम पे दूध चढ़ाऊंगा, 1000 बिलीपत्र चढ़ाऊंगा, तुम्हें श्रीफल चढ़ाऊंगा, तुम्हें दिया लगाऊंगा, 100 रुपया दे दूंगा अगर मेरा इंटरव्यू आए और मैं पास, कल इंटरव्यू है, मैं पास हो जाऊं, नौकरी लग जाए. वही हुआ, नौकरी लग गई. 8 दिन के बाद मंदिर में आया. मंदिर में आया और भगवान को कहने लगा कि भगवान, तारी कृपा थी नौकरी लागी गई, बस आज जोईतुं हतुं, कि आपकी कृपा से नौकरी लग गई, यही चाहिए था, इसीलिए मैं 8 दिन के बाद आया, थोड़ा काम था लेकिन लग गई. तब भगवान ने बोला कि नौकरी तो मैंने लगा दी, लेकिन तूने बोला था इतना इतना चढ़ा दूंगा, ये लाया कि नहीं लाया? तब भक्त ने क्या कहा मालूम है? भगवान आपने ही तो गीता में कहा था, कर्म किए जाओ, फल की आशा मत रखो. समझी गया बात में?
કર્મ કિए જાઓ ફલ की આશા મત રખો. તો તમે તમારું કર્મ કરવાનું ચાલુ રાખો ને મારી પાસેથી આ બધું મુકાવવાની આશા હું કા રાખો છો તમે? તો આનું નામ કહેવાય भाव शून्य. भाव नहीं, भाव सातत्य, भाव का सातत्य नहीं है और निष्ठा का सातत्य चला गया. जब चाहिए था तब सब बोल दिया, नौकरी भी लग गई, लेकिन भाव नहीं और निष्ठा नहीं. तो ऐसी भक्ति का क्या फायदा? बाद में भगवान ने भी कहा ठीक है भाई, मैं जब तने पगे लागू आज थी नहीं क्यों. तो कहने का मतलब है, ये जो बात मैंने की, भाव सातत्य और निष्ठा का सातत्य अगर आप में न हो तो ये पाखंड है. मेहरबानी करके ऐसा पाखंड मत कीजिए. और अगर भक्ति करनी है तो भाव और निष्ठा के साथ भक्ति नाव में बैठ जाइए. सामने जो बैठा है वो आपका सद्गुरु है, समझा देगा, किनारा आएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. हप की न बोली बा, ठप की न चली बा, धीरे धरी बा पाऊँ, गर्व न करी बा, सहज ही रही बा, बोलिया गोरख राव. अगले छोर पे परमात्मा है, उतर जाओगे. आगे ज्ञान मिला है, उस हिसाब से आप चलोगे. तो यही भक्ति जो साधन है, वही साधन परमात्मा से आपको साध्य करवा देगा. तो आज के गुरुवार पर मेरा इतना ही कहना है कि हमारा बेड़ा तभी पार होता है जब जो नाव में बैठने वाला, बिठाने वाला सुकानी हमारे साथ अंत समय तक रहे. और मैं तो मानता हूँ कि हम सबका बेड़ा पार हो चुका है. हम पहले आए थे तब कहाँ थे, आज हम कहाँ तक पहुँचे. हमारे बच्चे पहले कहाँ थे, आज कहाँ तक पहुँचे. और आज वहाँ तक पहुँचे हैं, इसीलिए आज हम गुरु दरबार में तन मन और धन से कुछ दे पाते हैं. आज તમે અહીંયા દાન કેમ કરો? તમારી પાસે કંઈ આવ્યું છે ને તો તમે કરો છો. જ્યારે નહીં હતું ત્યારે નહીં થતું હતું, પણ આજે આવ્યું છે તો તમે આપો છો. અહીંયા આવીને તમે સેવા કેમ કરો છો? જ્યારે સંઘર્ષ હતો ત્યારે નહીં થતી હતી. આજે તમારી પાસે સમય છે, તમે ઓફિસમાંથી નિવૃત્ત થયા છો તો આવીને સેવા કરો છો. ઘણા એવા છે જે કામકાજ કરતાં પણ અહીંયા બધી સેવા કરે છે, એની પાસે સમય છે, આવીને કરે છે. તન મન, તમારી પાસે મન છે માટે તમે મનથી કરો છો. પણ आप कब करते हो? जब आपने उसने आपको दिया तब आप करते हो. अगर उसने दिया ही नहीं तो आप करोगे कैसे? यानी उसने दिया है इसीलिए आप करते हो. और उसने दिया है का अर्थ क्या हुआ? हमने उसको तो देखा नहीं, लेकिन उसको जो दिखाने वाला है उसको हमने हर गुरुवार को देखा है. इसीलिए जो हमारे सदगुरु है, जिसे हम गुरु माउली कहते हैं, गुरुनाथ कहते हैं, उसने हमें दिया है, उतना हमें पता है. तो यही भक्ति नाव में बैठे रहे और आगे बढ़ते रहे. बेड़ा पार हुआ है, सबका बाकी है तो उसका भी हो जाएगा, और जिसका हो जाए वो बाकी दूसरों का अपने आप पार करेगा. तो आज के गुरुवार पर गुरु चरणों में दर्शन करते हुए 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम, ये जीव अंशी है और वो अविनाशी. अंशी की यात्रा अविनाशी तक है, और इसीलिए संसार सागर पार करने के लिए हम भक्ति नाव में बैठे हैं. हमारा सुकान गुरुदेव के हाथ में. ये यात्रा के दरमियान वो जो हमें कहेगा वो करेंगे, जो सिखाएगा हम सीखेंगे. और जब परमात्मा की प्राप्ति हमें होनी है तब उसी ज्ञान का हम आचरण करते हुए हमारे जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति का आचरण करेंगे और उसकी प्राप्ति हम करेंगे. 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं और यही प्रार्थना करते हैं. गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अडवंगकानीफमच्छेन्द्राज चौरंगी देवानक भर्तुरी सज्ञा भूम्यांब पूर्ण नवनाथ सिद्ध. जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ.
जय जय मछेंद्र समर्थ स्वामीनाथ महाराज की जय छोटे दादा की जय। આજનો ભંડારો રમેશભાઈ ગવાભાઈ પાડવી અઠવા લાઈન સુરત એમના તરફથી છે અને આજના ભંડારામાં રોટલી, દૂધી ટામેટાનું શાક, દાળ ભાત, કેરીનું અઠાણું, મોતીચૂરના લાડુ છે. સમ્યક સાહુ, શોભારામ સાહુ, છત્તીસગઢ, એમનો આજે જન્મદિવસ છે. 16 વર્ષની ઉંમર થઈ છે, માટે એમના તરફથી મીઠાઈ આ ભંડારામાં રાખવામાં આવી છે. તો જેમના તરફથી આજની મીઠાઈ છે અને જેમના તરફથી ભંડારો છે એ બધા જ ભક્તોને અંતરથી આશીર્વાદ આપું છું કે બધાનો ભક્તિ માર્ગ સુગમ રહે, બધા જ ભક્તિભાવ હૃદયથી કરે અને આને આ રીતે ગુરુ દરબારમાં તમને કાર્ય કરવાનો મોકો મળતો રહે એવી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું. ત્યાર પછી બીજી વાત કે હવે પછીનો ગુરુવાર હોળીનો ગુરુવાર છે, 17 તારીખ હોળીનો ગુરુવાર. હવે પછીનો જે ગુરુવાર છે એ સવારનો ગુરુવાર નથી. હવે પછીનો ગુરુવાર એ સાંજનો ગુરુવાર આવશે. હોળીનું પ્રાગટ્ય આપણે સાંજે અહીંયા 6:30, 7થી 7:30ની વચ્ચે આપણે અહીંયા કરીશું. એટલે આવતો ગુરુવાર સવારનો નહીં પણ સાંજનો છે. સાંજના ગુરુવારે બધા અહીંયા આવવાનું, દરેકને છૂટ છે, જેણે પણ આવવું હોય તે. અહીંયા હોળીનું પ્રાગટ્ય થશે, પ્રાસંગિક જ પ્રવચન થશે અને ત્યાર પછી મહાપ્રસાદ થઈ જશે. એટલે બધાને છૂટ છે અને મોટે ભાગે હવે બધી જગ્યા પર છૂટછાટ થઈ છે. તો જેણે પણ આવવું હોય ગામડેથી અહીંયા હોળી પ્રાગટ્ય થશે, હોળીની પૂજા થશે. તમે ગામમાં હોળી ઉજવતા હોય તો તમે અહીંયા આવીને પણ એ હોળીની અંદર નારિયેળ હોમવાનું હોય, જે હોય તે અહીંયા કરી શકો છો અને અહીંયા પણ તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકો છો. તો આપણે અહીંયા જે હોળી કરીએ છીએ આખા સંપ્રદાય માટે કરીએ છીએ કે જે પણ ભક્તો આવતા હોય એની ઉપરની કોઈ આડઅસર હોય કોઈની તો અહીંયા બધી ઉતરી જવી જોઈએ. તો સાંજનો સમય છે, 7થી 7:30માં હોળી પ્રાગટ્ય કરશું અને હોળી થાય, પ્રાસંગિક પ્રવચન અને મહાપ્રસાદ છે. તો આવતો ગુરુવાર હોળીનો ગુરુવાર અને સાંજનો છે એમ સમજે અને એ પ્રમાણે બધા જેણે આવવું હોય તે આવતા ગુરુવારે સાંજે અહીંયા આવી શકે છે. तो आ रीते आजना गुरुवारे आज के गुरुवार पर बस इतना ही. सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेंद्र समर्थ और आदेश.